السلام علیکم آداب ناظرین کشمیر لٹ فورم ملاقات غنیمت پروگرام ہیتھ تہندس خدمتس مز حاضر بہ ڈاکٹر شاہدہ حسین شاہدہ تو محترم گلاب سیفی تہ سارنی مایہ برد سلام تو آداب پیش کران ناظرین اس پاو تہ ژتس زِ یہ پروگرام براہ راست مختلف ملکن مز مختلف چینلو دستیاب تو کشمیر لٹک اس مین پیج تمہ علاوہ ہیکن بالخصوص وادی کشیر ہند سن ناظرین یہ پروگرام کشمیری سانگس تو کاشر ساز پیجس پہ تہ براہ راست وچھت ناظرین سانہ وادی کشیر مز ادبی میدانس مز تم واریاہ تھیکن لائق ناو یمو پنہ قلمہ ست نہ صرف ادبس پوچھر دیت بلکہ یت کے تہذیب تمدن ثقافت کے اعتبار کر تمو پن زندگی تھوک آیتن تو آیتن تھوت تم انجام دتک تم کارنام دتک انجام یمو ست تم عظیم شخصیاتن من شمار سپد یا شامل سپد یمو من تم تہ کینٛہہ مقتدر شخصیات تو تم تھد ناو یمو ادبی تو فنی اعتبار مختلف رنگن مز لکن ہند دل رنزنائے یموے تھدیو ناو من ادبی دنیاہک اخ سہ تھود ناو یس اسہ آز ملاقات غنیمت پروگرام خاطر بڑ چکہ چاو سان ژورمت سن ازک مہمان چھن کن تہ تعارفک محتاج یم چھ عظیم ڈائریکٹر تہ یم چھ لامثال ایکٹر تہ یم چھ مایہ ناز ڈائریکٹر تہ تو یم چھ مشہور معروف شاعر تہ یعنی حرفن مولا بشیر دادا صٲب بشیر دادا صٲب تہ اس پن سوری ٹیم ہیتھ پنس پروگرامس ملاقات غنیمت یتھ ناو اس تہ وچھ ونجہ استقبال کران بکر میں باسان میرا ایک چونکہ رائٹ نہیں بنتا ہے سوال کرنے کا لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا وہ بات کی بات میں نے سنا ہے کافی وہ چرچے ہیں آج آپ کے کہ آج 4 جولائی کو آپ پیدا ہوئے ہیں آج آپ کی سالگرہ ہے کیا یہ جسٹ ایک اتفاق ہے کہ اتنے ہائی پروفائل پروگرام کا آغاز جو ہے وہ آپ کی سالگرہ سے ہوا ہے یہ اتفاق ہے یا آپ نے ڈیلیبریٹلی کیا ہے نہیں میرے لیے تو بس اتفاق ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہماری جو یہ روح رواں جو اس فورم کی ہیں کشمیر لٹ فورم کی ان کا کیا تھا تو انہوں نے 4 جولائی جو ہے شاید سنڈے ہے تو باقی آپ کا بہت بہت شکریہ میں خیر مبارک تہ دل سے آپ کا بہت بہت شکریہ تو ہاں میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ آج بھلے ہی میں یہاں پہ گیسٹ ہوں ایک مہمان ہوں لیکن ٹو می سب سے زیادہ امپورٹنٹ پرسنالٹی جو ہیں آج وہ سیفی صاحب ہیں گلاب سیفی صاحب آپ ان کو مبارکباد دیتے رہیے ساتھ میں اگنور می بیکاز آج بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈے ہے کہ آج گلاب سیفی صاحب کا ان کی سالگرہ ہے تو مبارک ہو میری طرف سے بہت نوازش جنم دن مبارک ہو سیفی سر ہماری طرف سے بھی آپ کو جنم دن مبارک شکریہ دادا سر ناظرین یمہ حسین پروگرامچ رنگینیت مد نظر تھوت اسہ پروگرام باپت سپیشل میوزیکل گیسٹ سن تہ اہتمام کورمت یہن تعلق نارتھ کشمیرس یم چھن کن تہ تعارفک محتاج چاہے کشیر اندر کشیر نیبر بیرون ریاست تو بیرون ملک تمو پنہ مدر ہٹہ لکن ہند دل رنزنمت تو آز تہ رنزناوان یم چھن کن تہ تعارفک محتاج میون مراد منظور احمد شاہ صاحب منظور شاہ صاحبس سانس پروگرامس مز وچھ ونجہ استقبال شاہ صاحب سون تہ دل سے ان کا استقبال ہم کرتے ہیں شاہ صاحب کا ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا جوائننگ میں تھوڑا سا وہ لیٹ منظور شاہ صاحب میرے خیال میں ہمارے ساتھ جڑے شاہ صاحب تون چھو استقبال خیر مقدم شکریہ ناظرین بہ دم تہ مختصر تعارف کشمیر لٹ فورم کشمیر لٹ عالمی سترس پہ سہ آن لائن پلیٹ فارم یتن کان تہ قلمکار کشیر متعلق ادب تو ثقافت حوالہ پنن خیالاتن ہند اظہار ہیکان کر
لفظ لٹ گو لٹریچر، لٹ گو علم، ادب، علم چھ گاش، یہ گاشک شمع روشن کرت دنیا کس کونس کونس تام واتناون کہ غرض کشمیر لٹ ناو ژارناو. کشمیر لٹ چھ کم و بیش پتمو 10-20 ؤریو پہ سرگرم عمل، یمیک مقصد صرف ادبی خدمت یوت چھن بلکہ یہ بین الاقوامی سطح پہ ہند سماج، تہذیب و تمدن تو ثقافت کے بقا تو پاپر جائی باپت پن تھکن لائق کام کران. کشمیر لٹ ناوک آن لائن پیج امہ کتھ ہند ٹاکر ثبوت یت مز نیبرم تو بالخصوص وادی ہند ناماوار تو نوآموز شخصیات پن فن پار پوسٹ ہکان. کشمیر لٹ کس ات عظیم مقصدس پتہ ناظرین اخ عظیم ناو لل عارفہ تو حبہ خوتون ہندین خوابن تعبیر ژھانڈن واجن خاتون، سماجی دگدار خاتون چھن کن طارفک محتاج. یم کشمیر لٹک روح روان اطہر ضیا صاحبہ. ادبی سماجی تو ثقافتی اعتبار لول کانچان، پنہ قلمہ سمو واریاہ بڑ کارنامہ انجام دتمت تو یم واریاہو ینامو تو اعزازو ست ونس تام نوازنہ آمت. بہ پاو تہ ژیتس ناظرین زی یم کینچس کالس کشمیرس مز KS آفیسر تہ رودمت. یم حامدی کشمیری صٲبن سٹوڈنٹ تہ رودمت. حامدی کشمیری صٲبنہ وقت اس اخ مشہور 3 ماہی میگزین نیران یت ناو جہاد، یم تمیک ایڈیٹر. امریکہ ونکن آسان زیادہ تر، تو امریکہ واتت تہ رود یمن ہند سماجی مسائل قلمس وتج دِوان. تو توے کور یمو اینتھروپولوجی ہند شعبہ اختیار تو کشمیر لٹس ست وابستہ روزت یم آز تہ پن نیک مقصد ہیت برونٹ کن پکان. اللہ تعالیٰ دین یمن مزید تھزر قلمس. تو بہ کر کشمیر لٹ فورم کس روح روان خاتون یم زن کن اطہر ضیا صاحبہ تمن کر بہ مودبانہ التماس گزارش کہ تم کرن ویلکم ایڈریس پیش ام پروگرام خاطر. اطہر ضیا صاحبہ. ڈاکٹر شاہدہ صاحب، گلاب سیفی صاحب، بشیر دادا صاحب، منظور شاہ صاحب تو کشمیر لٹک ٹیکنیکل ٹیم، میانہ طرف تہ سارنی سٹھا خیر مقدم تو تہند کھت زیادہ سان ناظرین کرامن. تو کشمیر لٹچ یہ محفل اس ترتیب دژمژ امیک دتو تہ آلریڈی انٹروڈکشن ڈاکٹر شاہدہ صاحبن. تو بہ ون کی ژھوٹ ات متعلق. تہ سارنی پتہ کہ کٲشُر ثقافت، کٲشُر تمدن، کٲشُر تہذیب تک یم کٲشرِ وادی مز ونکس تم ساری امہ سۭتۍ سرشار. تم صبح شامس وتھنس بیہنس سۭتۍ کٲشُر لیکھان، کٲشُر کران، کٲشُر پران. تو واریاہ کال پہ اس شوق کہ کشمیر لٹ کے ذریعہ انہو یہ کت بات آن لائن، یہ کت بات کرہو اس بین الاقوامی سطحس پہ پیش. تو پتمن 6-7 رتن مز گلاب سیفی صبس ست، ڈاکٹر شاہدہ صبس ست بی باقین دوست برادری ست کت کران. تو اس دوپ تمن کہ اس کرہو یہ اخ پروگرام کرہو ترتیب یت مز کٲشر ثقافتک، ادبک، تمدنک اس سورے اس گہوار یہ انہو اس برہ کن کت کرہو ات متعلق. تو یمو تہ دیت اس واریاہ ساتھ ات مز، یمو کر حوصلہ افزائی. تو آز اس پروگرام تر برہ کن یت ناو ملاقات غنیمت. ات مز یژھان کہ اس کرہو تمن سارنی لکن ست کت یم کشیر تو کٲشرس تو کٲشرس تمدنس، ثقافتس تو کٲشرس ادبس لول بران. تو اس آسو ہر رت کوشش کران کہ اس انون اخ مہمان یمس ست گلاب سیفی صاحب یم مستقل میزبان روزن. تو یمن ست روزن اس ساتھی میزبان تہ ڈاکٹر شاہدہ بیٚیہِ تہِ چھِ باقی دوست یم یتھ مز شٲمِل گژھن. تو بہٕ تہِ روز تۄہہِ سۭتۍ منٛزٕ منٛزٕ ہم کلام گژھان ییٚتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن ضروٗرت پیٚیہِ. تو أسۍ کرو سارنٕے پننٮ۪ن ادیٖبن، پننٮ۪ن فنکارن، ییٚمِس کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ تھکٕنۍ لایق لُکھ چھِ تو یم روزمرہ تہ کشیر لول بران تمن ست کرو اس کت کرنچ کوشش. تو بین الاقوامی سطحس پہ کشمیر لٹ کہ وسادت ہیکو اس تمن ست کت کرت تو برہ کن انت. تو فی الحال میں یوتُے ونن تو بہ دم یہ امیک باقی اس کارخان یم پکناوان گلاب سیفی صاحب تو ڈاکٹر شاہدہ صاحب برہ. تو اللہ تعالیٰ ساری حوال، قدرتس ساری حوال. تو کرتو بسم اللہ. السلام علیکم. سٹھا شکریہ اطہر ضیا صاحبہ. مختصر ویلکم ایڈریس کرو تہ پیش. تو اس سٹھا خوشی، سٹھا شکریہ تہند.
नाजरीन ये कथ चतस पावन जरूरी कि साउथ अफ्रीका पे अमेरिका या सेंट्रल एशिया या मुख्तलिफ मुल्कन मज वनकन लाइव प्रोग्राम तुम ब्रोह कन पेश सपदान तो अत पत कन जन अस टीम तो टेक्निकल टीम तमिक तारुफ दिन जरूरी so let me introduce you with our technical team from American Studio. We have Miss Emily and her associates, and from Jammu we have Mr. Nasir and Mr. Tahir. The program बाज़ाब्त प्रोग्रामुक आगाज करने बाबत यम सेद शोद पन्नस बरादर मोहतरम गुलाब सैफी साहब कुन जे तिम करन प्रोग्राम शुरू. मोहतरम गुलाब सैफी साहब. सठा सठा शुक्रिया डॉक्टर शहदा साहब. जनाब गड़कर बुशस मुल्तबिस डॉक्टर ये बशीर दादा साहब से मैं मुल्तबिस हूँ, क्योंकि मैं रखूँगा लैंग्वेज, क्योंकि हमारे बहुत से नाज़रीन जो है वो मतलब उर्दू हिंदी से भी वाबस्ता हैं, तो इसलिए मेरी जो लैंग्वेज होगी दादा साहब से वो खासकर उर्दू के हवाले से ही मैं बात करूंगा. उर्दू या जो हमारी हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज है उसमें कभी होगा बीच में. हाँ हाँ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ बहुत से जुड़े हुए हैं डिफरेंट ये ना चैनल से. तो बिला तमहीद दादा साहब, मैं पहले शेदा साहब से कहता हूं कि इन्होंने भी शेर सुना होगा फराज कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं. बिस्मिल्लाह दादा साहब. हाँ जी. तो ये तो हमें पता है, नाज़रीन को भी अब पता चले कि आपकी शख्सियत असल में यहाँ पे क्या है, क्योंकि उन्होंने आपको गानों के जरिए सुना है. और दादा साहब ये भी आप जानते होंगे कि परिंदे अपने बच्चों को परवाज सिखाते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन घोंसले बनाना सिखाते नहीं हैं. घोंसले वो खुद बनाते हैं. आप भी आप भी जो बचपन से आपको उस माँ को सलाम जिसने आपको दूध पिलाया है, उस वालिद को मैं सौ मुबारक, सौ सलाम, जिन्होंने आपकी किरदार साजी की. वहां तक तो ठीक है, वो हम बाद में आ जाएंगे. लेकिन बशीर अहमद से बशीर दादा तक का सफर ये कैसे हुआ, और वो जो पहला तिनका उस घोंसला जो आपने अदबी घोंसला जो शुरू किया बनाने का, पहला तिनका कहाँ से मिला, कैसे मिला, वो कौन सा लफ्ज था, वो कौन सी सत्र थी, वो कौन सा शेर था, या वो कौन सा डायलॉग था जिसने आपको इस चीज की तरफ माइल किया? जरा आप यहां से आप हमें नाजरीन सबसे पहले आपने नाम के बारे में बशीर अहमद और बशीर दादा, इसमें ज्यादा कोई बैकग्राउंड है नहीं, लेकिन यह है कि मैंने खुद ही इसको सिक्यूज किया नाम को. बशीर अहमद मैंने नहीं किया. मैंने एक बार सोचा कि क्या वाकई मैं इस काबिल हूं कि मैं बशीर रखूं और अहमद भी लिखूं. वाह. दोनों नाम जो हैं, दोनों में हुजूर सल्लल्लाहु का जिक्र है, उनकी तारीफें. मैंने कहा मैं इस अहल ही नहीं हूं, बशीर नाम के अहल ही हूं. अब बशीर भी और अहमद भी दोनों उन्हीं के नाम, मुकद्दस नाम है. मैंने कहा नहीं, मैं दो नाम उन्हीं के हों और मैं इस काबिल नहीं हूं, ये मेरी बसात और मेरी औकात नहीं है, इसलिए मैंने एक ही रखा. मैंने कहा एक काफी है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा उतरूं हो सकता है आगे बढ़ के थोड़ा इसमें इजाफा करें. ये बैकग्राउंड है. दूसरा है कि जब मैं छोटा था, मेरे वालिद साहब ही वॉज अ डिजाइनर. गांधी आश्रम में वो डिजाइनिंग करते थे. वो जो अनंतनाग मशहूर है गब्बरसाजी के लिए, तो वो डिजाइनिंग गजब की करते थे. तो मैं उनको देख के मैं कह रहा मैं भी डिजाइनर बनूं. डिजाइनर बन नहीं सका, लेकिन मैं आगे जाके वो पेंटर बन गया. वाह. सबसे पहला मेरा जो इश्क था हो गया. डिजाइनर नहीं बन सका बिकॉज माय फादर वाज अ ग्रेट डिजाइनर. उनको मतलब काफी जगहों से ऑफर मिलते थे कि आप हमारे लिए डिजाइन करें, तो मैं नहीं बन सका. तो मेरा वो पहला था कि रंगों से, क्योंकि वहां भी रंगों का काम है डिजाइनिंग में भी. बिल्कुल. तो मैं भी रंगों में पड़ गया, लेकिन मैं बनते बनते मैं कमर्शियल पेंटर बन गया. वो लोगों के पोर्ट्रेट बनाना, बिगाड़ता ही मैं ज्यादा था, बनाना बिगाड़ना. नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. फिर पैसा भी आने लगा, लेकिन तशफ़ी नहीं होती थी.
तशफ़ी नहीं होती, मैं कमर्शियल पेंटर में हूँ, तो क्या इसमें कोई आर्ट वगैरह, मुझे तलाश थी आर्ट की कि मैं कोई आर्ट का वर्क करूं। ये ठीक है, मैं हजारों पेंटर निकल सकते हैं, अगर एक बच्चा मेरे पास काम करे, सीखे, अथगस्त मजबूत थोड़ा बहुत, वो भी पेंटर बनेगा, लेकिन आर्टिस्ट हर कोई नहीं बनेगा। मैं आर्टिस्ट बनना चाहता था। वहां पे अनंतनाग में काफी आर्टिस्ट थे, शफी चमन अभी भी नाम है उनका, मैं उस लेवल का आर्टिस्ट नहीं बन सका, और मैंने कहा सरेंडर करें, पेंटर में हूं लेकिन आर्टिस्ट में नहीं बन सका। लेकिन उसके बाद मुझे आर्ट से रिलेटेड हर कोई काम बड़ा आसान लगता था। और मैं किसी को एक्टिंग करते देखूं, मैं कहूं ये क्या है, मैं तो कर सकता हूं, मैं कर भी सकता था, और किया भी मैंने। किसी ने कहा मोनोलॉग है, पैरेलल हुंडू साहब मोनोलॉग करते थे, तो मैंने सुना, मैंने कहा ये मैं भी कर सकता हूं, मैंने किया। मुझे लसकोल ने बुलाया, कहा कि परमानेंटली आप ये मोनोलॉग कीजिए हमारे रेडियो के लिए। सीखा मैंने कहीं से नहीं। तो ऐसे जो भी आर्ट से रिलेटेड कुछ चीजें मुझे नहीं आई, मतलब बांसुरी बजाना मुझे नहीं, बाकी मैं हारमोनियम बजाता हूँ, म्यूजिक से भी मेरा थोड़ा सा रिलेशन है। जब भी कोई सिंगर गाता है, वहीद जिलानी साहब जैसे या कैसर निजामी साहब, वो मुझे कहते हैं कि आपके जहन में क्या धुन थी जब आपने गजल लिखी, तो मैं बनाता था, उनको ढांचा बना के देता था। तो म्यूजिक से भी मेरा रिलेशन था। तो बनते बनते फिर उसके बाद ये उससे काफी वो बहुत ज्यादा मुमित साबित हुआ मेरा म्यूजिक के साथ इंटरेस्ट होना। वो मेरी कंपोजिशन जो थी, मैं तो कंपोज नहीं करता था, लेकिन वो मुझसे हमेशा कहते थे आइडिया क्या है। जैसे शकील बदायूनी से नौशाद साहब पूछते थे कि जब आप शेर लिखते थे, मुझे काश तुमसे मोहब्बत न होती, तो कहते कि जब आप शेर लिख रहे थे तो उस वक्त क्या क्या गुनगुना रहे थे। तो शकील साहब कहते थे, मुझे काश तुमसे मोहब्बत न होती। वो नौशाद कहते बस यही, मैं कोई छेड़ूंगा नहीं इसके साथ। ये मेरा भी हाल था कि ये मुझसे पूछते थे, उसी चीज को रिफाइन बिल्कुल ये होता है। तो उसी को उसके बाद गुनगुनाहट होती है। हाँ, ये हुआ। तो आर्ट से रिलेटेड मतलब ये ऐसा नहीं था कि मैंने पहले घोंसला बनाया, वो किया, कुछ नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या, बिकॉज आई नेवर न्यू कि मैं क्या कर रहा हूँ। तिनके तो आपने जोड़ने शुरू किए थे ना उसी वक्त? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता ही नहीं एग्जैक्टली मैं तिनके जो, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा था। अच्छा, इवन मेरा ऐसा, मेरे परेशान थे लोग पढ़ाई में बहुत कमजोर, मतलब ये मेरे नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं, पढ़ाई की वो तो बात करें, मैंने कहा बहुत कमजोर, लेकिन पास करके मैं क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या, मुझे करना क्या है। वो तिनके वाली जो आप बात करें, मुझे पता ही नहीं मैं तिनके बना रहा हूँ, लाशुरी तौर पे चल रहा था। मतलब मैंने डेलिबरेटली कुछ नहीं किया आर्ट के लिए। आपने तिनके बनाकर ये ना तिनके जोड़ के घोंसला नहीं बनाया, एक महल खड़ी कर दी है। अब मेरा एक और सवाल आपसे, पहले हम, क्योंकि आपने आर्ट्स के हवाले से ही बात की है, शायद आपको ना पता हो, लोग आपकी कहानी नहीं, आपको पता है, आपकी कहानी नहीं बल्कि आपके किरदार डिस्कस करते हैं। आपको पता नहीं पता है? और बड़े बड़े लाजवाल किरदार आपने तख्लीक किए हैं। जनाबे वाला, आज नाज़रीन को बता दीजिए, ये कहां से चुनते हैं आप किरदार, कहां से मिलते हैं ये? मैं कोई कैरेक्टर चूज नहीं करता, कैरेक्टर मुझे चूज करता है। मैं कोई किरदार बनाता नहीं, मैं सिलेक्ट नहीं करता मुझे ये किरदार पे लिखना है, वो किरदार मुझे चूज करता है कि तुम ही लिखोगे। मतलब एक लड़की, जमीला, हाँ। एक लड़की है, अनंतनाग में थी, उसका नाम था जमीला। अच्छा, वो हमेशा खिड़की पे हुआ करती थी। अच्छा, हाँ, खिड़की के बारे में, खिड़की पे हुआ करती थी। वहां मेरी बड़ी बहन रहती थी मलकनाग, अनंतनाग में। तो मैं अक्सर वहां जाता था। तो एक बार मैं 11:30 बजे कुछ बीमार थी शायद, माई सिस्टर वाज नॉट वेल, मैं वहां गया तो मैंने उसे फिर देखा। मैं हमेशा जब भी मैं वहां से गुजरता तो मैं जमीला को देखता खिड़की पे। बाहर, खिड़की के बाहर क्या था, वहां पे एक नल था, तो औरतें, लड़कियां पानी भरने के लिए आ जाती, वो उनसे बातें करती थी। एक बार जब मैं 11:30 बजे गया तो मैंने देखा ये क्या कर रही। मैंने फिर बड़ी बहन से कहा, मैं ये लड़की है, हमेशा मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ वो लड़की, उसको कोई पूछने वाला नहीं घर में। कहा अच्छा जमीला, वो बेचारी अपाहिज है। जब ये अपाहिज इसने कहा, मैं वाकई मैं सो नहीं सका, उस रात में सोया नहीं, बल्कि मैं इसको बार बार देख रहा था, बार बार ये रची बसी थी मेरे जहन में। इतनी खूबसूरत उसकी आंखें, गजाली आंखें जो से ना, वो मैं सो नहीं सका। तो वो कैरेक्टर उसने मुझे चूज किया
बिकॉज वहां से डिफरेंट लोग गुजरते थे, वो लोग भी, वो राइटर भी थे वहां पे, अनंतनाग में काफी राइटर, वो सारे वहां राइटर भी, शायर भी गुजरते थे, लेकिन उस कैरेक्टर ने मुझे चूज किया कि यू विल राइट मी। वाह वाह वाह। तो यही होता था, कोई भी ख्याल है, कोई भी दर्द है, वो दर्द जो है वो मुझे चूज करता था, बशीर दादा यू विल राइट मी। कोई फिलॉसफी का था, वो मुझे नहीं चूज, वो शफक सबोरी को चूज करता, वो गुलाब सैफी को, तो फिर फिलॉसफी के लिए गुलाब सैफी का और मेरा जो लिखने में मिजाजन, लोग कहते हैं, आई डोंट नो लोग कहां तक सही कह रहे हैं, कहा मिजाजन आप दोनों, मतलब आपके लिखने का वो, लेकिन डॉक्टर नजीर आजाद हैं, बाकी हैं, क्या नाम, हमारे रफीक राज साहब हैं, उनके लिए भी अलग अलग सब्जेक्ट है, मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो मुझे चूज करते हैं, मैं किसी सब्जेक्ट को चूज नहीं कर, और आते हैं मेरे पास कैरेक्टर ड्रामाई अंदाज में आते हैं, तो ये सीन पार्ट है सारा। इसी के साथ मैं ज़िम्नन एक सवाल करता हूं, शायद ये इसी के सवाल साथ जुड़ता है। एक डायलॉग आप ही का लिखा हुआ है, शायद आपको याद आए, जब वो किरदार जो है कई बरस के बाद घर पहुंचता है, आखिरी सीन है शायद, कोई इंतजार करते करते अब इस दहाने पे पहुंचा है, अब देखिए क्या डायलॉग आपने लिखा है, मैं हैरान हो जाता हूं, शायद मैं नाजरीन तक ये पहुंचाना चाहता हूं। किरदार जो पहुंचता है अपने गांव, बोलता है कि पीछे बैकग्राउंड में आवाज आती है, द्राई खा बेवफा, इधर से जवाबन बैकग्राउंड से जवाब आता है, सठा चेहर लोग जिंदगी कुरने में बेवफाई क्या परा रही भाई, ये, और वहीं पे द एंड हो जाता है। दोनों में से कोई भी बेवफा नहीं है, लेकिन आपने ये किरदार ये कैसे सोचा, इसका एंड कैसे सोचा ये? लेकिन मैं अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे याद नहीं आ रहा है ये कौन सा, आप आई थिंक ये शहजार से मेरे ख्याल में है कहीं। अच्छा हाँ शहजार, हाँ ये अयाश आरिफ साहब का भी यहाँ से हवाला, अयाश साहब थे उसमें, ही वाज द प्रोड्यूसर, ग्रेट डायरेक्टर, ही वाज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। शबीर मुजाहिद साहब ने भी वो डायरेक्ट किया, शबीर मुजाहिद साहब, यस शबीर। तो वो एक्चुअली वो उसमें बहुत मेहनत की सब ने, उसमें मेरा नहीं है, मतलब कमाल है मेरा कोई नहीं, सिंपल सी कहानी थी, गांव से रिलेटेड एक रोमांटिक कहानी थी, डिफॉरेस्टेशन पे थी, लेकिन इन्होंने इतना ब्यूटीफुली उसे बनाया, उसमें टीम बाहर से आई, कमाल। तो लेकिन मैंने वो कैरेक्टर देखे थे, वो कैरेक्टर भी अगेन मैं रिपीट करूंगा, उन कैरेक्टर्स ने मुझे चूज किया था, मुझे कहीं पे, मैं गांव जाता था, मानी गांव एक गांव है अनंतनाग में, विस्सू, वहां में जाता था अक्सर, वो गांव मेरा बड़ा फेवरेट। तो वहां पे उन दिनों दपुस, लड़कियां बातें करती थी आपस में, या लड़के से, दपुस जादमास नेरन नेबर मगर दपुस, ये दपुस मैंने कैच किया था, मैंने फिर इसी में शहजार में ही दपुस। अच्छा, वहां पे कुछ एक थोड़े वो विलन टाइप के भी लोग थे, उनको मैंने रचा बसा मैं उनमें, और उनको अपने में डाला, उतारा, तो वो कैरेक्टर मैंने खुद किया था, नुंदा, शादी लाल के साथ में। हालांकि लोगों ने मुझे बोला कि और शादी लाल के साथ आप कैसे करें, आप तो सीरियस एक्टर हैं, आप कैसे करें, ये तो कॉमेडी टाइप का है। मैंने कहा यार देखेंगे, किस्मत अलग शादी लाल के साथ काम करना, बट आई वाज श्योर कि शबीर मुजाहिद इज देयर, अगर शबीर मुजाहिद को लगे कि दादा नहीं कर सकता है तो वो मुझे कमाल के डायरेक्टर। तो फिर वो किया, लेकिन वो भी मैंने वहीं से लिया था, मैंने अपना, मेरा ओरिजिनली मेरा कुछ भी नहीं है, मैं क्रिएट नहीं करता हूं, मैंने जब तक कैरेक्टर नहीं देखा हो, मैं हवाई कैरेक्टर नहीं गढ़ता हूं, मैंने देखे होते हैं जितने भी कैरेक्टर मैंने लिखे हैं। डॉक्टर शायदा साहब को पता है कि कुछ दिन पहले मुझे कहा था, खन्नाबल में एक वो दरवेश बैठते थे वहां पुल पे, सुलबंडा, मैंने थिएटर प्ले लिखा, येली संगर फिल्म, तो मैंने उसको लाया, मैं उसके पास बैठा, फकीर के पास, मैं उसको सुनता था, तो मैंने उठा के, मैंने रियल कैरेक्टर, मैंने हवाई कैरेक्टर कोई नहीं लाया, इसीलिए लोग उसमें रूट्स जो हैं लोकेट करते हैं कैरेक्टर में, नहीं हमें ये कैरेक्टर है, ये फर्जी कैरेक्टर नहीं। फर्जी कैरेक्टर ये इसलिए नहीं कि मैंने लिखे थे, वो फर्जी कैरेक्टर इसलिए लगे बिकॉज फर्जी थे नहीं, देखे हुए थे, रियल कैरेक्टर्स को फिर रियल ही बनाने की कोशिश की, और फिर उसके बाद सब पूरी टीम ने, शहजार की आप बात कर रहे हैं, या ईमानदार की अगर आप बात करें, उसमें भी शबीर मुजाहिद थे डायरेक्टर, उसमें जो मेरा रोल था मामा जानी को, वो मैंने दो कैरेक्टर, दोनों शबीर मुजाहिद साहब ने देखे,
ایک بجبارہ کا ایک فوٹوگرافر تھا یوسف, اور ایک تھا میں ایڈمٹ ہوا تھا ہاسپٹل میں, وہاں پہ ایک کیریکٹر تھا بڑا موالی, اس کا آپریشن تھا نیکسٹ ڈے, تو اس کو ڈاکٹر ڈھونڈ رہے, وہ کہاں ہے, وہ کل آپریشن ہے, وہ آ گیا بڑا موالی ٹائپ کا. کہا کیا ڈاکٹر نے کہا کہ تم کہاں تھے, آپریشن نکال ہے صاحب مش پتہ تہندِ آپریشن تل نیرن بہ کی میں ایسے گلن, تو وۄنۍ زن موٗدُس بہٕ پگہہ تہٕ تتہِ زن پرٛژھ تِمو یہِ خوٗن پسینہ سٹوری بوزنا, بہٕ اوسو گوٚمُت خوٗن پسینہ وٕچھنہِ, میں لگا یہ, میں نے کہا یہ تو کیریکٹر ہے, یہ خون پسینہ, میں نے اس کو سن رہا, تو پھر بیٹھا کون ہے آپ, میں نے کہا اس طرح, میں نے بائی دی وے کہا, میں نے کہا میں ریڈیو وغیرہ میں کوئی پروگرام, اچھا ریڈیو میں بڑا انٹرسٹ اس نے لیا. تو مجھے کہا کہ مجھے ایک سوال کا جواب, میں نے کہا کیا, کہا کہ جن کو محبت ہوتی ہے, میں نے کہا نہیں مجھے تو پتہ نہیں, کہا یہ گانا کیا ہے پھر, بڑی دنیا میں آ کر دل کو سمجھانے کہاں جائے, محبت ہو گئی جن کو, لیکن اسے سیریسلی پوچھا جن کو محبت ہو گئی. اچھا میں نے اٹھا کے ایماندار میں یہ کیا, تو یہ پروفیسر عثمان سے کہتا ہے کہ عیاش عارف کا جو کریکٹر تھا وہ اس کا بیٹا تھا, وہ کہتا ہے ایماندار میں پروفیسر ماما جانی سوچتا یہ امس اخترس کیا تھا لڑکی چکر کیا تھا مطلب محبت, یہ دپان جیجا جی یہ اکس فلم ڈائلاگ کہ بڑی دنیا میں آ کر دل کو سمجھانے کہاں جائے, محبت ہو گئی جن کو, جنس گو محبت اختر لالس کیا خطا کھا لو, یہ میرا کوئی ڈائلاگ نہیں تھا, یہ میں نے سنا ہوا تھا. تو یہ مجھے کافی ممید ثابت ہوا لائف میں کہ جو آپ نے دیکھا ہو, مشاہدہ کیا ہو, اس کو اٹھا کے آپ پیسٹ کیجئے. ایکچولی میں پیسٹ ہی کرتا رہا ہوں, میری اپنی کریٹیوٹی کچھ بھی نہیں. کیا بات کرتے ہیں آپ, یہ کردار میں ابھی وہیں پہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کو. ایک اور خوبصورت سا ڈائلاگ, پھر ضمنی سوال بھی آ جائے گا. ایک بحیثیت آرکیٹیکٹ بے خودی, شاید آپ کو یاد آئے, خودی, ہاں بے خودی, خودی, کمپرومائز اور نو کمپرومائز. خودی یا بے خودی, میرے خیال میں میرے پاس یہ غلط ہے, کیونکہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا آپ کا, میں نے دیکھا تھا کہیں پہ پروفائل میں, وہاں پہ بے خودی وہ لکھا ہوا ہے, پھر وہ غلط لکھا ہوگا, وہ کسی نے ہاں ٹیگ کیا تھا, وہ وہیں سے میں نے وہ پڑھا تھا. وہاں پہ میں آپ کا انگریزی والا ترجمہ سناؤں گا. وہاں پہ انگریزی میں ایک ڈائلاگ تھا جو آپ نے, سیدھی سی بات ہے, یا تو اردو میں یہ کہا ہوگا یا تو کشمیری میں. آپ اپنے بیٹے کو لاسٹ ڈیتھ بیڈ پہ آپ ایک ڈائلاگ کہتے ہیں, if I would have compromised at your age, I would have at present been a famous and successful personality or an architect. As an architect آپ کہتے ہو, ٹھیک ہے. Son, my advice at the deathbed is learn to compromise. آپ کی شخصیت سے تو نہیں لگتا ہے؟ نہیں, اول تو وہ میرا اسکرپٹ نہیں تھا, وہ there was a adaptation of ہالی ووڈ مووی فاؤنٹین ہیڈ, ٹھیک, تو اس میں جو رول میں نے کیا, میں نے بعد میں دیکھا کہ وہ اوریجنلی جو کیریکٹر اس نے کیا تھا ہالی ووڈ میں, نے کہا مجھے کیوں نہیں دکھائی پہلے یہ فلم, اس نے تو غضب کا رول کیا. میں نے تو کھیتی باڑی کی تھی, مجھے بعد میں پتا, حالانکہ لوگوں نے تعریفیں کی کہ آپ نے بہت اچھا رول کیا, لیکن جب میں نے اوریجنل دیکھا, وہ جس نے وہ کردار نبھایا تھا وہ ایکچولی میرا لکھا ہوا نہیں تھا, بٹ اس میں میرا کوئی ریفلیکشن تھا. میں جب 8ویں جماعت تک میں پڑھتا تھا اسلامیہ اسکول میں, ہمیں اخلاقی کہانیاں پڑھاتے تھے. اخلاقی کہانیوں کا مجھ پہ یہ زور رہا کہ میں ابھی تک وہ جو کہانیاں میں نے پڑھی ہیں, آئی ایم دا ہیرو, آئی وانٹڈ ٹو بیکم دا ہیرو آف دوز اخلاقی کہانیاں, اسٹوریز جو ہیں, تو وہ رہا. اور اس سے خسارہ بھی ہوا, سچ بولنا ہے, ٹیچر مجھے سمجھاتے تھے سچ بولنا ہے, میرے دوست بھی جانتے, میرے دشمنوں کو بھی اعتراف ہے کہ بشیر دادا جھوٹ نہیں بولتا ہے. بالکل. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ نہیں, ابھی کیا ہے کہ مجھے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یو آر اے ہیرو, ریئل لائف ہیرو. کیوں؟ کیونکہ میں نے کافی ہنگامے کیے, میں سچ بولتا تھا, میں نے کہا نو وی شوڈ بی آنےسٹ. تو اس لیے میرے کافی دوست بنے میری آنےسٹی کی وجہ سے, میرے اصول کی وجہ سے. لیکن وقت آنے پر جب وہ میرے دوست بنے, آگے چلتے ہوئے وہ میری آنےسٹی جب ان کو سوٹ نہیں کرنے لگی, انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. مطلب جس آنےسٹی کی وجہ سے مجھے وہ ہیرو سمجھتے تھے, میں کلوز ہوں, وہ میرے کلوز آئے, لیکن وقت ہوا کہ دھیرے دھیرے
मेरी ऑनेस्टी जो तो उनको क्लैश होने लगा, उनको सूट नहीं की कहीं पे, तो मुझे उन्होंने छोड़ दिया। आप कंप्रोमाइज आपने सीखा ही नहीं है। मैंने नहीं किया, मैंने लाइफ में नहीं किया। कैसे मैंने कंप्रोमाइज मैंने नहीं किया लाइफ में कंप्रोमाइज। जनाब फकीर कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है, क्योंकि उसने पहले ही कंप्रोमाइज किया होता है उस ऊपर वाली जात से, उसने तो सरेंडर किया होता है। फिर ये दुनिया और दुनिया के लोग कैसे, उनके साथ कंप्रोमाइज आप कैसे करते? आपकी शख्सियत जो है ना, वहां पे तो बिल्कुल आपने अपनी शख्सियत को बिल्कुल आपने इंसाफ किया है। जो आपका दरून है वही तो आपका बरून भी होगा। तो मैं तो इत्तेफाक करता हूं आप नहीं कर सकते थे, आप जैसी शख्सियत नहीं कर सकते। अब चूंकि जो कैरेक्टर मैंने निभाया, अगर आप उसी कसौटी को यहाँ पे इस्तेमाल करें तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हम वही कसौटी सेट करें। मसलन फिर नुंदा का जो कैरेक्टर मैंने निभाया, चोर था वो, मैं नहीं हूं चोर, वो रोल था, तो आई लिव्ड दैट कैरेक्टर। जब मैं उन दिनों में चोर था, मैं अंदर से चोर रहा था, मैं फील कर रहा था आई एम ए थीफ, मैं डाकू हूं, मैं जंगल लूट रहा हूं। बेसिकली जब रोल करते वक्त आपने देखना कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर कैरेक्टर। जब मैंने नुंदा का रोल किया कंप्लीटली मैं बात भी वैसे ही कर रहा था। जब मैंने सरदार का रोल किया, बशीर बडगामी ने मुझे दिया, मैं उन दिनों पूरा सिख था। 1 मंथ शूटिंग में आई वॉज सिख, आई वॉज ए चेन स्मोकर। मैं बिल्कुल नहीं पिया, नहीं मैंने सिगरेट नहीं पिया, बिकॉज आई डिविड दैट कैरेक्टर। मैं उसमें उतरा, अंडर द स्किन ऑफ दैट कैरेक्टर मैं रहा। क्या बात। कोई भी कैरेक्टर मुझे मिला तो अंडर द स्किन में चला जाता था। मैंने कहा मैं नहीं सिगरेट पीऊंगा, और मेरे दोस्त कह रहे थे हमें खदशा है कहीं तुम 1 महीने के बाद सरदार ही ना बन जाओ। मैंने कहा चांसेस हैं। ये ऐसे होता है कि कभी कभी, लेकिन ये नहीं कि बस मैंने कोई नेगेटिव रोल किया तो मैं नेगेटिव हूँ, या पॉजिटिव रोल किया, रोल करने से न तो मैं पॉजिटिव बनता हूँ, बट वो है कहीं जो जिसकी आपने मिसाल दी जिस फिल्म की, वो है वो मतलब मैं पे तस्मस का कुछ साथ पे मेहनत ही करना। अगर आप रियल लाइफ में टीचर हैं तो आपको टीचर का रोल मिलता है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कुछ चीजें आपको पता है। तो लेकिन जो आप नहीं है वो बहुत मुश्किल है करना। मतलब डाकू का रोल मुझे दिया जाए, डाकू में अगर नहीं हूं तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है मुझे ऑब्जर्व करना। वो मैंने एक्चुअली देखा भी है कि वहां पे तो आप तो बिल्कुल मतलब वहां पे मुझे लगता है कि डाकू ने भी अगर देखा होगा तो उन्होंने भी खौफ खाया होगा। हाँ सचमुच में मैंने देखा है वो सीरियल। तो अब थोड़ा सा ये जायका चेंज करते हैं, ये जो आपका आर्ट फील्ड से हम थोड़ा सा आपकी शायरी की तरफ आते हैं। नहीं, शायरी से पहले हमको ड्रामा पे ही बात करनी चाहिए। अच्छा अभी ड्रामा पे ही बोलिए। हाँ, बेसिकली ड्रामा जो है इट इज द फर्स्ट जैनर ऑफ वर्ल्ड। जब दुनिया बना पहले शायरी नहीं आई। सबसे पहला ड्रामा जो है दैट्स आदम, इबलीस, हवा एंड ऑलमाइटी वाज द कैरेक्टर। तो मुझे उसमें ड्रामे में कन्वर्सेशन बहुत खूबसूरत लगी, और मुझे मिलिटेंट कैरेक्टर जो उसमें लगा, आदम हवा, उसमें मिलिटेंट कैरेक्टर जो है, मैं फॉलोअर नहीं हूं उसका, बट आई लव दैट कैरेक्टर दैट्स इब्लीस आई लाइक इट। अभी तक मुझे लग रहा है कि ऐसा, और इब्लीस का कन्फ्रंटेशन किसके साथ? ऑलमाइटी के साथ। जिसका ऑलमाइटी के साथ तो वो कितना बड़ा होगा, वो छोटा भी नहीं है। लेकिन कैरेक्टर मुझे उनका ये लगा कि उससे कहा गया कि अब आप आदम को उसके आगे आप सर्वसिजदा हो जाओ। इब्लीस का जवाब है, इब्लीस की विट देखिए, कह रहा अब आप तो वहदुल ला शरीक है, मैं शरीक नहीं ठहराऊंगा, मैं झुकूंगा सिर्फ आपके, बिकॉज यू आर आई कैन नॉट बो इन फ्रंट ऑफ दिस हजरत आदम। उन्हें इनकार किया, अल्लाह ने कहा नहीं करना होगा, कहा मैं नहीं करूंगा, मैं झुकूंगा सिर्फ आपके। यहां से कन्फ्रंटेशन शुरू हुई, यहां से कन्फ्लिक्ट जो अच्छा, इसमें से अगर किसी को ड्रामा सीखना हो वो उसको सारा मटेरियल यहीं से मिलेगा। मतलब कन्फ्लिक्ट यहां से शुरू हुआ, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑलमाइटी एंड दिस इब्लीस। तो रहती दुनिया तक वो ड्रामा रहेगा, रहती दुनिया तक वो चल रहा है, और फॉलोअर जो हैं इब्लीस के बढ़ रहे हैं। दुनिया में सबसे जो मेजॉरिटी है इब्लीस के फॉलोअर्स की है, अल्लाह के जो फॉलोअर हैं वो कम हो रहे हैं। अभी तबाही क्या है? तबाही ये वायरस आ गया, ये क्या है? ये इब्लीसाना हरकत है, मार डालते हैं लोगों को, बनी नवा इंसान का खात्मा हो रहा है। हु इज डूइंग इट?
इब्लीस के फॉलोअर्स। ठीक। सो इब्लीस तो अभी तक उसकी सक्सेस है, वो चल रहा है। अच्छा, क्या किया, एक लग्जिश सी हो गई, उसमें भी इब्लीस का ही रोल था। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे जिसके आगे झुकना था, मैं अल्लाह को दिखाऊंगा कि उससे मैं कौन सा काम कराऊंगा। लग्जिश ऐसी हुई कि उनको बहिश्त से निकाला गया। ठीक। तो ड्रामे के सारे एलिमेंट इसमें हैं। आपको मिलिटेंट कैरेक्टर मिल रहा है, गजब, रहती दुनिया तक वो जिंदा रहेगा। आपको रिपेंटेंस जो है बाद में हुई, उनको निकाला गया, बाद में पछतावा उनका, उसके साथ उसके बाद वो पछतावा, एहसास, चूंकि लैंग्वेज नहीं थी उन दिनों, लैंग्वेज नहीं थी, लैंग्वेज थी बिटवीन अल्लाह एंड इब्लीस। हजरत आदम की कोई लैंग्वेज नहीं थी, वो इशारों से बात करते थे। लेकिन वो जब उनको निकाला गया, एक दर्द था, एक पेन था कि एक जरा सी लग्जिश से हमको बहिश्त से निकाला गया, बट दिस वाज द बिगेस्ट ट्रेजेडी। तो उसके बाद एहसासात आ गए, जज्बात आ गए, उन्होंने एक्सप्रेस करना शुरू किया। तो धीरे धीरे आगे आगे जब उसको एक लैंग्वेज मिली, तो शायर और शायरी का आगाज हो बाद में। पहले इसलिए मैंने कहा कि हमें पहले ड्रामा जो जेनर है ये सबसे पहले आया, उसके बाद शेर और अदब की बात आई। अब आप शेर अदब के बारे में बात करें। सर एक शेर में, हाँ, 1 मिनट, थोड़ा सा 5 मिनट और हम दादा साहब से बात करेंगे, तो फिर क्योंकि ये शेर व शायरी से ही वो वहां पे हम कनेक्ट करेंगे। कहाँ ये मंजूर शाह साहब की तरफ जाएंगे। मैं जनाब पहले एक आपका कश्मीरी कलाम जब मैंने सुना, पहले भी सुना है, इस बार मैंने इसलिए सुना क्योंकि इस बार मैंने तनकीदी निगाह से इसको देखा। पहले तो हम लज्जत से वो ना अपने कानों को तशफ़ी देने के लिए, अपने दिल को सुकून देने के लिए हमने आपका कलाम कई बार सुना है, यही वाला कलाम। लेकिन इस बार थोड़ा सा इस पर मैंने जानकारी हासिल की। सठा मुश्किल छु दिलबर आदुनुक राउन सठा मुश्किल, ये जिगरुक दोद, ये जुगरुक नार, ये जुगरुक नार ललनाउन तो व्यतराउन सठा मुश्किल। बुछुस एहसास गंगरावा, बुछुस अहराई हरफावा, मगर जानान जिगरुक दोद लफ्जाउन सठा मुश्किल। वहीं पे एक आता हूं मैं कि खबर तस खान मलिस क्या अजीब हुई खान माजर गो, खबर तस खान मलिस क्या अजीब हुई खान माजर गो। चटाछुम दिल जिगर अंदरी सु छख साउन साउन सठा मुश्किल। खान मोल से आए छक। तो क्या बात है, आपने ये जो जिगर और दोद जो है इसको कैसे आपने बैक वक्त दो, जो सुनने वाले हैं ना, दो एक लखते जिगरुक दोद, ठीक, बेश माशोक सुन दोद, बैक वक्त शितम त्रायन ओश, बैक वक्त खुदा पे ये मे खतर आमस लेखना, खुदा पे ये मे खतर आमस लेखना। ये कमाल, मैं यहाँ पे आपको कहूंगा रसा जावेदानी मुझे याद आए। मेरे एक्चुअली रसा जावेदानी, फिर आप जवाब दीजिए। रसा जावेदानी को तेरे इश्क की इंतहा चाहता नहीं, इश्क में लखते जिगर अश्के रवां तक पहुंचे, लखते जिगर, इश्क में लखते जिगर अश्के रवां तक पहुंचे, तेरे शिकवे न मगर नोके ज़बां तक पहुंचे। ये आप बड़े शायर जो है ना, बड़े मुफक्किर, आप एक जैसा कैसे सोचते हो? और वो एक जैसा ख्याल भी नहीं होता है, एक जैसा ख्याल होता ही नहीं है। लेकिन आप लोगों के वो क्या कनेक्शंस हैं, ऊपर के तार, ऊपर वाले के साथ तार जुड़े हुए, जब आप सोचेंगे तो ऊंचा ही सोचेंगे। जरा इस पर। असल में रसा साहब का नाम आपने लिया, मैंने जब उनका पहली बार शेर सुना, कहने को रसा सब कहते हैं, उन तक तो रसाई हो न सकी, क्या नाम सिकंदर रखने से जब वक्त सिकंदर हो न सका। मैं दिल में सोच रहा था काश कुछ ऐसा हो, मेरी मुलाकात उनसे हो। मुझे किसी ने कहा कि वो हैं आज अनंतनाग में। मैंने कहा कौन? रसा जावेद। मैंने कहा अरे कहाँ रसा जावेद, कहाँ? उनका बेटा यहाँ पे काम करता, मटन चौक में एक गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, वहां पे उनका बेटा जो था वो शायद हार्टिकल्चर डायरेक्टर था, क्या था। तो कहा कि वहां पे वो अपने बेटे के पास आए। तो मैं गया उनकी कदम बोसी के लिए, तो मैंने सलाम किया, तो आप जानते नहीं थे। तो मैंने कहा मैं शायर हूँ। मुस्कुराए, शायद उनको लगा कि खुलिये से शायर नहीं हो सकता है, बड़े लंबे लंबे बाल वगैरह, मॉडल ही लग रहा था उन दिनों, छोटा था।
तो शायर हैं आप? हाँ। तो लेकिन बहुत ही उनका लहजा तो बैठी। तो मैंने एक गजल सुनाई, गजल सुनने के बाद उन्होंने एक कमेंट किया, और वो टिप्स जो उन्होंने मुझे 2-3 दिए, जिंदगी भर मैंने वो याद रखे और मैं उस पर काम किया। उन्होंने कहा कि आप शायरों में, कुछ शायरों में, लेकिन मैं अभी आपकी बात करूंगा, आप कुछ ख्याल पेश करना चाहते हैं लेकिन पूरा आप नहीं कर पाए हैं, कुछ अंदर ही रहा है। वाकई उसमें था, जो मैं शेर लिखते वक्त काफिया रदीफ का जो चक्कर है ना, उस वजह से वो चीज रह ही गई थी अंदर। लेकिन साहिब नजर क्या है, वो उन्होंने बोला, कहा कि आपने जो सोचा था शायद आपने वो पूरा नहीं कहा है, ये शायद आप काफिया रदीफ की वजह से, उस कैद की वजह से आपने कहा, लेकिन इस पे आप कॉन्सेंट्रेट किया कीजिए कि जो आप कहना चाहते हैं, फॉरगेट अबाउट काफिया रदीफ। अगर काफिया रदीफ आपको रोक रहा है, चेंज योर काफिया रदीफ ख्याल के लिए। क्या बात है, तो वो टिप्स उन्होंने मुझे फिर दिए और बोला कि कभी आपका गजल ऐसी लिखिए, शेर ऐसे लिखिए कि जब आपको लोग सुने या पढ़ें, पढ़ते हुए उनको उठना ना पड़े, अलमीरा खोलना ना पड़े, डिक्शनरी खोलना ना पड़े कि आपका ये लफ्ज जो है, अगर आपने वैसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो उनको उठना पड़े, तो नाकामी है आपकी। लैंग्वेज वो यूज कीजिए कि जो कम से कम, अगर पूरा मफहूम ना, लेकिन पहले पढ़ने में उनको लगे कि इसके मफहूम क्या है, मफहूम तो कम से कम समझे। इतना हार्ड भी नहीं होना चाहिए कि मफहूम ही ना समझे, मतलब पहले हाँ कंफ्यूजन हो, लेकिन शेर आपका रुकना नहीं, अगर वो पढ़ रहे हैं तो वो रुके नहीं। इतना दकीक नहीं होना चाहिए लैंग्वेज का, यूज ऑफ वर्ड्स। अभी सैफी साहब का, गुलाब साहब का भी क्या, ये जो शायरी जो आप करते हैं ना, किसी को डिक्शनरी उठाने वो देखने के लिए उठना नहीं पड़ता है, दैट्स योर सक्सेस। और उसमें क्या है, अगर आप वैसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो सिंगर जो है ना, सिंगर को बड़ी आसानी होती है। लेकिन कुछ शायर ऐसे हैं, वो तो बहुत ही बड़े शायर होते हैं, बहुत ही बड़े, मतलब इल्मी लिहाज से बहुत बड़े, लेकिन जब एक म्यूजिक कंपोजर या सिंगर उसको कंपोज करने लगता है या गाने लगता है, दैट कंपोजिशन वोमिट्स दैट पोएट्री आउट। बिल्कुल का नहीं, सब म्यूजिक इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। हालांकि शायरी उसमें क्या होता है, उसमें दकीक अल्फाज होते हैं। बिल्कुल आपकी बात में यहाँ पे ये आपकी बात को जोड़ता हूं। मुझे भी एक उस्ताद ने कहा था, यहाँ पे कश्मीर के ही बहुत बड़े उस्ताद हैं, नाम नहीं लूंगा, उनने कहा आपके पास सिर्फ 2 लफ्ज होते हैं सपोज सोचने के लिए, हमारे पास 12 लफ्ज होते हैं या 10 लफ्ज होते हैं। लेकिन आपको अल्लाह ताला ने, मतलब दादा साहब की जैसी शख्सियत को अल्लाह ताला ने ऐसा फन बख्शा होता है आज तरफ अल्लाह कि उन्हीं 2 लफ्ज में आप एक लफ्ज का सिलेक्शन करते हैं। दूसरे के पास जो आलिम होता है, जो आलिम शायर होता है, उसके पास 10-12 लफ्ज होते हैं, ठीक कहता, लेकिन हम 10-12 में वो वाला लफ्ज नहीं चुन पाते हैं। हमारे पास भी वो 2 लफ्ज होते हैं, वो जो एक लफ्ज आप 2 में ही चुनते हो, ये बशीर दादा का कमाल है। ये है, ये मैं मानता हूं कि हम आगे भी बात करेंगे वो। हाँ, आप कुछ फरमा रहे थे। मैं वही लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ कि लैंग्वेज वो करें आप इस्तेमाल। जैसे मैंने एक हादसा देखा, हाँ हादसा मैंने देखा, अब मैं बयान कर रहा हूँ। जब मैंने बयान किया जो मैंने देखा था, अगर मैं एक कलाकार हूं, आर्टिस्ट हूं, राइटर हूं, मेरा एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए, मैं जिसको सुना रहा हूं, मैंने काफी कहानियां सुनाई लोगों को, रियल कहानियां, उनको वो रो रहे थे, उसका मतलब कि मैं कामयाब था। उसके बाद मैंने एक कहानी जो जिस पे रोए थे, वो जब मैंने सुनाई थी, जब मैंने वो लिखी, मैंने शॉर्ट स्टोरी में उसको लिखा, तो मैंने एक दोस्त को जिसको मैंने सुनाई थी कहानी, रियल हादसा, वो रो पड़ा था। उसने कहा लानत क्या तुमसे क्या लिखमुत क्या जज्बातन एहसासातन अत क्या ओरिजिनल चैन वन तम साथ ती से वो सहल जबान मज वनोत, देखने वाले जो थे, सुनने वाले थे, वो रो पड़े थे। आपने क्या किया, अब इसमें बनावट आपने लाई, इसमें आपने ड्रामा लाया, तो एग्जेजरेशन लाई, लैंग्वेज चेंज की। एक्चुअली हम वहां पे मार खाते हैं। हम सबसे मुश्किल काम जो है राइटिंग में, शायरी में, दैट्स कि इजी लिखना, आसान लिखना बहुत मुश्किल है, और आसान लिखना सबके बस का रोक नहीं। ये लगता है, मतलब आसान लिखना बहुत ही मुश्किल है कहने को, बिकॉज हम जब लिखने पे आ जाते हैं तो हाँ, हम सारी वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं, सारा जितने भी मोटे मोटे अल्फाज हमने सुने हो, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। आसान लिखने के लिए चाहिए एक नजर चाहिए, और ये भी चाहिए कि लोग चाहते क्या है। आपको लोगों के नब्ज वगैरह के बारे में
आपको जानकारी होनी चाहिए कि लोग कौन सी लैंग्वेज, अगर आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत गजल लिख रहे हैं, तो अल्फाज में भी मोहब्बत होनी चाहिए। आप दकीक अल्फाज तो गजल मर जाती है। गजल के लिए एक मौजून, एक नरम, एक शिगुफ्तगी तभी आती है, नरम जबान हो, मीठी जबान हो। तो लेकिन अब आप डिक्शनरी से निकल के मोटे मोटे हरूफ, मोटे मोटे अल्फाज, तो उससे आप अपनी जो गजलें हैं, अपना कलाम जो तबाह कर देते हैं। तो इसका तो ख्याल रखना। अब मंजूर शाह साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो जो थोड़ा सा अगर मतलब थोड़ा सा हमारे नाजरीन जो है उनको थोड़ा सा हम इधर की तरफ भी लेते हैं, क्योंकि तार में कुछ और बात होती है। तो जनाब डॉक्टर शहदा साहब मंजूर शाह साहब के साथ बात। मंजूर शाह साहब से मुखातिब तमने कुन मुखातिब के मंजूर शाह साहब यम वादी हिंद वादी नबर ते पन्ने हट से मदर हट से लुकन हंद दिल रजनावन। यमो मंजूर शाह साहब यमो कोर इब्तिदा फोक सिंगिंग पे, तो गोडनथ प्राइवेट यम मुख्तलिफ लॉक्चर तंजीमन सत या कुन महफिलन मज गवान, तम पत पे यमन कोर अख सफर अख पत योतान युवा वाणी सर्विस जो जन रेडियो पे चलान, तो तथ मज गई यमन एंट्री। तम पतन कोर यमो रेडियो बाज़ाब्त, तो पत दुत यमो गजल ऑडिशन। यम सात यमो गजल ऑडिशन दुत, तथ मज आव यमन ए ग्रेड, तो तम पतन पकिम ब्रो। तो तम पत आय रियासती चाहे कल्चरल अकेडमी, दूरदर्शन, बाकी मौके यमन पे यमन सपद फराहम। कोई ऑडियो का प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने खुद रखा। थोड़ा डिस्टॉर्शन लग रहा है ऑडियो का। चूंकि नॉर्थ कश्मीर से ताल्लुक तवान, एक्चुअली युंद यम वस्ताद च तिम मातामाल पे यमन रफी आबाद साइड मातामाल, तो तमिच करें यम पान जिक्र कि खजर मोहम्मद शाह साहब तिमन वस्ताद यमो जन रबाब वायनस समन रहनुमाई करान। तो अमे अलाव बचपनस मज ज्यादा मोहम्मद रफी त बोजान। मोहम्मद रफी मोहम्मद रफीन बात गेमत बचपनस मज, तो तमी बचपन पे ओसमुत संगीत ताल्लुक, तो गुलकारी यहंदिस रग रग मज बसित। तो तम पतन समखे मुतासर गमित गुलाम अहमद सूफी साहब या हसन सूफी साहब यम जन यहंदन उस्तादन मज शामिल। तो मंजूर शाह साहबन कह बात यम नाजरीन जबानी याद, मसलन दोखार करस पोत आलो दिस, जोरुम न दूर गुल लालो वापस फेरखना, या चेरित ये दिल बहावे। मंजूर शाह साहब करो गुजारिश गोडनथन कि यमवे दादा साहब वनकन मेहमान सनिस मुलाकात गनीमत प्रोग्रामस मज, तुम तु सी खुश नसीबी। करो गोडनथन करो नाजरीन तान पेश बशीर दादा साहबन, मतलब मे कह बात वन यमवे मज अगर तुम कह बोजनो तो सपदो महजूज, तो नाजरीन सपदन महजूज। मंजूर गलत गम करूं छा सहल दोस्तों, इथे विगल क्या कार पल दोस्तों, दुस युथी चोल आवी हया मने क्या फसाना अजल दोस्तों, मैं था मिलिस आई तन जिंदगी दिल भर कर सल दोस्तों, यमिस दो दशकुम दिलस गासनी परसोई बशीर गजल दोस्तों, चीरी बुहार दिल नबसु यार, चीरी
بهار يسبي ندسو سيار ياسي جامن بچاک دوہا دوسرا زدار ياسي چيري بهار يسبي ندسو سيار ياسي نالس بچونی جرح سایم برنگ بل ہے سایم برنگ بل ہے نملے بکور مل ہے بس اختیار آسی نملے بکور مل ہے بس اختیار آسی چیری بغار یسبی ندسو سیار آسی باغا دلو سجائے سن باغوا میں روشن سن باغوا میں روشن اڈفل گلاب کیا یا دشمن اڈفل گلاب کیا یا دشمن چیری بغار یسبی ندسو سیار آسی جامن بچاک دوہا دوسرا زدار آسی چیری بغار یسبی ندسو سیار آسی رائنن بشیر کر کیا زخمہ میں تاز لگما زخمہ میں تاز لگما یدویت تیر لائق بگس شکار آسی یدویت تیر لائق بگس شکار آسی چیری بہار یسبی ندسو سیار آسی سیٹھا سیٹھا شکریہ دادا صاحب یہ منظور شاہ صاحب زٕ انتر بیٚیہِ کُنہِ غزلہِ ہٕنٛدۍ بوزنٲیِو تُہۍ بیٚیہِ اَسہِ تبرکن زٕے انتر دادا صٲب ظلم دور خدا کنن خدا میں پانچو ظلم دور خدا کنن خدا میں پانچو نکوئی پانے یہ زخم دہل پانے یہ زخم سو ظلم دور خدا کنن خدا میں پانچو مشان گئی مشت مسائل مش مگر چھو محال چھو مش مگر چھو محال چھو مش مگر چھو محال چھو پان مشرق مخلص لیکن سلاس میں یاد پان مشرق مخلص لیکن سلاس میں یاد ظلم دور خدا گاچو کنن خدایم نپانچو خدای بوزن
ظاہر نہیں خدائے بوزن ظاہر نہیں نظر سے نینی بلائی لگی نہیں نظر سے نینی بلائی لگی نہیں نظر سے نینی بلائی لگی نہیں زندگی کیا تجھی بنائی میں چاند باپت جہان کو زندگی کیا تجھی بنائی میں چاند باپت جہان کو خدا گواچ کنن بالن میں کون چھوڑ ہائے کیا میٹھ تو مدر آواز سٹھا شکریہ تہذ شکریہ یہ واقعی کونس کونس دنیا کس کونس کونس توے وٲژمٕژ آواز کیازِ کہ تُہۍ چھُ سُہ سرٛہ واقعی اتھ ہٹس مز ات چھُنہٕ کانٛہہ جوابٕے ات چھُنہٕ کانٛہہ جواب کہ یم تۄہہِ یم بٲتھ یم تہِ گیمٕتۍ چھُو آز تام تِم چھِ سانٮ۪ن دلن منٛز بٔسِتھ سانٮ۪ن دلن منٛز سانٮ۪ن گرن منٛز تِہنٛز سُہ گنگناہٹ ہمیشہ سٲنِس یہِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کتھ روزِ جٲری تہٕ بہٕ یِمہٕ دادا صٲب بہٕ پرٕ ییٚتہِ کینٛہہ تیرے خیال کی میں اب بھی شمع جلاتا ہوں تیرے خیال میں اب بھی شمع جلاتا ہوں کبھی ملے جو فراغت تجھے تو آ جانا میں منتظر ہوں تیرا جب تلک میں زندہ ہوں میں جانتا ہوں میری آرزو ہے لا حاصل وہ آرزو جو میرے درد کا مقدر ہے وہ آرزو جو میری بے بسی کا محور ہے پھر آگے میں چھوڑ دیتا ہوں کچھ سطور چراغے یاد محبت جلائے رکھتی ہے وہ آرزو جو میری بے بسی کا محور ہے چراغے یاد محبت جلائے رکھتی ہے عجب جنوں تھا پاسٹ ٹینس میں چلے گیا ماضی میں عجب جنوں تھا میرے سر پہ پچھلے موسم میں کہ تیری یاد کے گلدان میں نے توڑ دیے عجب جنوں ہے میرے سر پہ اب کے موسم میں پریزنٹ ٹینس میں کہ تیری یاد کے گلدان جوڑ جوڑ کے میں بارہ دری سجاتا ہوں جناب والا دادا صاحب آپ یہ بتائیے آپ پتھر بھی ہیں بیک وقت آپ موم بھی ہیں آپ گلدان ان کی یادوں کے اپنی معاشوں کے یادوں کے توڑتے بھی ہیں اتنے سخت اور دوسرے ہی پہر آپ اسی گلدان کے جو وہ ٹکڑے ہیں وہ جوڑ جوڑ کے پھر آپ سجاتے ہیں اپنی بارادری کیا مزاج ہیں آپ کے یہ کیا یہ جو طبیعت میں یہ جنون ہے اصل میں محبت یہی ہے کہ آپ کبھی اپنے محبوب کا دل توڑ رہے ہیں یہ ایکچولی آپ اس سے محبت ہی کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دل توڑوں وہ روٹ جائے تو اس کے بعد وہ کچھ دن کچھ پل کچھ راتیں میرے بغیر جیے گی یہ سارا سین پارٹ جو ہے یہ ہر محبت کرنے والے کا یہی ہوتا ہے کہ میں توڑوں وہ ایکچولی جھگڑنا لڑنا اور یہ جنون جو ہے جنون بیسیکلی محبت کی معراج ہے اور محبت کو عروج تک پہنچانے میں جنون کا ہی ہاتھ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس جنون نہیں ہے آپ دنیا کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے جنون ہے آپ کچھ بھی کر سکتے تو وہی ہے کہ کبھی میں گلدان توڑتا ہوں ٹھیک غصے میں اس کے ہجر میں اس کے فراق میں تو کبھی میں کہہ رہا ہوں میں تہیہ کیا ہے میں نے ارادہ باندھا ہے کہ اب میں اسے دیکھوں گا نہیں تو اس کے بعد وہ گلدان واپس جوڑتا ہوں گلدان توڑنے میں بھی جنون تھا اسی کی محبت کا اور گلدان جوڑنے میں بھی اسی کی محبت یہ محبت کی ڈفرینٹ شکلیں ہیں صورتیں ہیں کچھ منظر ہیں لیکن ہے لب لباب ہے محبت ہی یہاں پہ میں تھوڑا سا ضمناً یہ کہوں کہ ہم آڈینس کی طرف بھی جائیں ہمارے بہت سارے سوالات آئے ہیں بہت سارے محبتیں آپ کے لیے آئی ہیں ڈفرینٹ ہمارے چینل سے تو میں کچھ نام پڑھتا ہوں پھر ایک آدھ نام جو ہے وہ آپ کے ساتھ بالمشافہ بھی وہ بات کرنا چاہتے ہیں تھرو ورچوئل وہ ساؤتھ افریقہ سے ہیں ڈاکٹر حنیف خیریت میں پہلے میں
डॉक्टर शबीर, ये जो मिस्टर शबीर जिलानी जो है वो दुबई से आपको सलाम अर्ज करते हैं आपकी खिदमत में। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मिस्टर अमजद करीम भी दुबई से हैं, वो भी सलाम अर्ज करते हैं। डॉक्टर नायरा फ्रॉम न्यूयॉर्क, नायरा एंड हर फैमिली न्यूयॉर्क से आपको इस वक्त बराह रास्त देख रही है। न्यूयॉर्क से, ओके। न्यूयॉर्क में ही हैं वो भी, उनकी फैमिली इस वक्त देख रही है। मलिहा जी जो लंदन से हमारे साथ ज्वाइन हुई हैं। डॉक्टर तारिक एंड नोमा जो कश्मीर से, मैं सलाम भेजा आपको। जी जी। इम्तियाज वानी साहब एंड फहमीदा जी वो अनंतनाग से जुड़ी हुई हैं। मुख्तार जी वो लाल बाजार से, उनकी एंटायर फैमिली आपको देख रही है इस वक्त। शबीर मुजाहिद साहब का एक सवाल है आपके लिए, वो मैं बाद में पढ़ता हूँ। तो जी.आर. गनाई साहब पुंछ से, पुंछ में भी आपके ये हैं, वहां पे भी आपके मद्दा हैं। पुंछ से हमें अभी ये आया है, जी.आर. गनाई, गुलाम रसूल गनाई शायद हैं ये, गनाई फैमिली से, क्योंकि वो कश्मीरी भी है। वहां पे मंडी इलाका जो है वो कश्मीरी है, शायद ये कश्मीरी भी हुए क्योंकि आप उर्दू के हवाले से भी हैं। सलीम बांडे पुंछ। मिस्टर संजीव कुमार ढाकरे जो है वो भुवनेश्वर से, उन्होंने कहा कि बशीर दादा साहब को हमारा सलाम। आपकी मेरे ख्याल में या तो उन्होंने गजलें पढ़ी होंगी या आप ऑल इंडिया मुशायरों में ये हुए हैं, क्योंकि वो भी एक इससे अदब से जुड़े हुए हैं। मिस्टर सर्वेंद्र जी हैं यूपी से, वो भी नमस्कार कहते हैं आपको। चिनाब वैली से मुकद्दिसा जानिसार जो हैं वो भी एक अदीब हैं खुद, जानिसार साहब वो किश्तवाड़ से हैं। मुनीर बानाली साहब जो हैं वो वहाँ बानीहाल से। मैं और काजी अख्तर बहुत अच्छे शायर हैं हमारी चिनाब वैली के। तो ये मैं हाँ, तो एक पहले मैंने कहा था शबीर मुजाहिद साहब का ये जो सवाल है आपके लिए, वो कहते हैं कि दादा साहब से ये पूछिए कि Life has changed since long. How about our Urdu or Kashmiri literature? Has it changed with the change of time? Has new generation adopted new trends in art and culture? जनाब मुख्तसर सा जवाब। नहीं चेंज तो नहीं है। हाँ ठीक है कि हम उसमें रेस्पॉन्सिबल हैं। सपोज वही बात होगी कि अगर हम दकीक लिखते हैं, ये गुलाम नबी गौहर साहब का मुझे बड़ा अच्छा कोट लगा था कि हमने खुद राइटर्स ने उर्दू को, कश्मीरी को, लिटरेचर को पर्टिकुलरली लोगों से दूर कर दिया। अगेन वही होता है वो दकीक लिखने में। उतना तो हुआ है कि हम दूर होते जा रहे हैं पब्लिक से, मतलब हमने लिटरेचर को बहुत दूर कर दिया, एक डिस्टेंस बन गया, सिर्फ इसलिए कि हम जो लिखते हैं ना वो हम अपने लिए लिखते हैं। अगर हम अपने लिए लिखते हैं, मेरा एक सवाल होता है अपने दोस्तों से जो ये दकीक लिखते हैं ज्यादा, मुझे अब अगर आप अपने लिए लिखते हैं तो फिर आपने 4 लोगों को बुलाइए, एक कमरे में बैठिए, सुनाइए एक दूसरे। लेकिन जब आप टेलीविजन पे, रेडियो पे, जिसको आम लोग सुनते हैं, वहां पे आपको आम लोगों का ख्याल रखना है। और लिटरेचर देखिए, एट द एंड ऑफ द डे एवरी जेनर ऑफ आर्ट और लिटरेचर इज फॉर पब्लिक। चाहे आपने मुगलिज्म की कामयाबी क्या थी, उसे आम लोगों ने लाइक किया। शोले बनी, उसमें वो एलिमेंट क्या था कि उसे आम लोगों ने लाइक किया। इंटेलेक्चुअल ने भी, बेस्ट आर्ट वो है कि उसे इंटेलेक्चुअल भी लाइक करें लेकिन आम लोग भी लाइक करें। लेकिन हमारा जो लिटरेचर है वो आम लोग नहीं लाइक करते। हमारे जो बड़े बड़े शायर हैं जिनसे मेरा वो है, मतलब शबीर साहब का, फिरोजी साहब का भी यही, मकबूल फिरोजी साहब का भी मैं सवाल जोड़ता हूं, फिर आप एक ही सम अप करेंगे। और शमशाद करालवारी साहब का, टेलीविजन और ये रेडियो पे आपने काम किया है, तो आपने क्या पाया है इसमें अंतर, क्या पाया टेलीविजन और रेडियो में? मकबूल फिरोजी साहब कहते हैं कि बशीर दादा साहब से ये सवाल मेरा पहुंचाइए कि जो आपने अपने लोगों के लिए हमदर्दी और दर्द, जिसको हम कश्मीरी में दग कहते हैं, कब और कैसे पैदा हुई आप में ये? तो अब आप इसमें ना 1-2 मिनट में इनके दोनों के ये जवाबात आप हमें। एक तो शबीर साहब का हो गया कि मतलब हमने खुद हम खुद ये चेंज नहीं हुआ है, हम रेस्पॉन्सिबल है। हमने लिटरेचर को, आर्ट को लोगों से दूर कर दिया, उसमें वो चेंज हुआ है। बाकी वो कोई फर्क नहीं है, मतलब जैसे आर्ट था वही है, वही शायरी है। तो सिर्फ ये है कि हमने लोगों को बिल्कुल आउट कर दिया इससे, तो उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। यंगस्टर्स जो है ना वो कौन सी शायरी लाइक करते हैं? अब पंजाब जैसा कल्चर नहीं है हमारे पास, पंजाबी क्यों सब लाइक कर, इवन कश्मीर में भी है पंजाबी, बिकॉज वो थिरकने का एलिमेंट हमने खत्म कर दिया। हमने
अब यंगस्टर्स आ गए हैं, वो बहुत खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हम उनके खिलाफ भी हैं। भाई वो गिटार क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो क्यों करते हैं? लेकिन देखना है कि कोई भी जेनर आपने चलाना, शायरी करनी है, म्यूजिक है, तो उसमें यह है कि पब्लिक से अगर नहीं जोड़ पाते हैं आप, तो दिस इज नॉट आवर सक्सेस, ये नाकामी है। उतना है कि यंगस्टर्स जा रहे हैं, वो ज्यादा या तो हॉलीवुड के वो जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं इंग्लिश वो सुनते हैं, या पंजाबी की तरफ वो बिल्कुल रागिब हो गए। वो उसमें तो ले दे के हमारी प्रॉब्लम है, हमें प्रेजेंटेशन हमारा बहुत वीक है, हमें नहीं मालूम, हमें मतलब डॉक्टर शाहिदा की गजल है, इसको कैसे कंपोज करना है, इसको कैसे आम जो पब्लिक है, बेसिकली सारा लिटरेचर, सारा आर्ट, ये सारा आम पब्लिक के लिए, तो वो हमको दिखाना है, एक तो लिखते वक्त, दूसरा फिर जब गाएं, उसके बाद जब पिक्चराइज करें। ये डिफरेंट स्टेज से जब गुजरे, तो हर स्टेज पे हमको इस बात का ख्याल रखना है कि आम लोग वो गिरफ्त में आ जाए। यहाँ पे हनीफ, डॉक्टर हनीफ साउथ अफ्रीका से जुड़े बराह रास्त, ये बीमार भी हैं, कोविड इनको हुआ था, लेकिन इन्होंने कहा है कि आई वांट टू टॉक टू दादा साहब, ये है मोहब्बत, ही इज ऑन बेड। शुक्रिया। तो ये नाज़रीन देखिए इस वक्त क्या ये अल्लाह आपको शिफा बख्शे हनीफ साहब, अल्लाह शिफा बख्शे आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम दादा साहब, बहुत खुशी हुई मुझे, हालांकि मैं 2-4 दिन पहले ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, मैं अभी भी ऑक्सीजन पे हूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी है अभी ठीक है। आपको देख के आज, आई एम आउट ऑफ कश्मीर लास्ट 35 years, आई एम मेडिकल हेड ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, एंड जब आपको देखता हूँ या तो हॉलीवुड के क्लिंट ईस्टवुड की याद आती है, नहीं तो बॉलीवुड के मनोज कुमार की याद आती है। आप में वो नसीरुद्दीन शाह साहब, मैं जरा भूल गया, वो सफेद बाल तो उन्हीं से जुड़ते हैं। तो सर आपकी मोहब्बत है। मैंने एक दफा एक प्राइवेट महफिल में सुना, 20-25 साल, मेरी 30 साल पहले, मेरे एक दोस्त है डॉक्टर मुश्ताक, वो अमेरिका में फिजिशियन है, उनकी बहन की शादी डॉक्टर की, तो रशीद हाफिज साहब ने उन्होंने बुलाया था, तो रशीद हाफिज साहब ने आपका एक कलाम किया, ज़रूर में दूर, अभी शायद इन हजरात ने भी गाया, और तो आपको यकीन नहीं आएगा कि मैंने, आप ये पूछ सकते हैं रशीद हाफिज साहब को, मैंने उनको सारी रात पूछा कि इसका राइटर कौन है, तो उन्होंने कहा बशीर दादा साहब है जो एक्टर है। मुझे यकीन नहीं आया, मैं वो इम्पॉसिबल ऐसे अल्फाज लिख सकता है। तो that was, I think, the richest earning night of Rashid Hafiz Saab. You can confirm it, because he had to repeat the song every hour with a mahfil of doctors, because we were stunned. We were stunned जो आपने wordings इसमें इस्तेमाल की है, ज़रूर में दूर यार, and the other song अभी जो गनाई साहब ने, क्या इनका नाम है, सॉरी, उन्होंने भी गाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया stunning poetry। हनीफ साहब, मैं आपको यहाँ पे, हनीफ साहब मैं आपका यहाँ पे कता कलामी माफ, मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि ज़ुर्म दूरियर, ये जो नाजरीन इस वक्त आप सुन रहे हैं या इसके बाद भी सुनेंगे, मैं तनकीद के हवाले से कहता हूँ, जब मैंने इसको बगौर सुना, इस एक मिसरे को, मेरे दिल से वाह निकला बहसत तनकीद निगार। मैं उन तमाम तनकीद निगारों के लिए इस वक्त यहाँ पे इस फोरम से गुलाब सैफी कह रहा हूँ। जब मैंने इसमें सुना एक लफ्ज गवाह छूं, कुस मगर गवाह, गुलाब सैफी ने, डॉक्टर शाहिदा ने, हनीफ साहब ने, खुदा गवाह, मैं पहले तो शेक हो गया। मैंने कहा चलो आगे देखता हूँ, आगे क्या है। 3 हिस्सों में है ये, ज़ुर्म दूर यार एक हिस्सा, गवाही किसकी, खुदा की, खुदा गवाह छूं। फिर आगे क्या कहता, कैनंत बालन में पान छो। मैंने कहा बस यही तो इसका तीसरा हिस्सा चाहिए था, क्योंकि हनीफ साहब, गुलाब सैफी और डॉक्टर शाहिदा जो है, अगर इनको गवाह बनाया होता, यार को बनाया होता, दोस्त को गवाह बनाया होता, वो इनके साथ उस सफर पे नहीं होते। मजनू ने सहरा, जो सहरा वो चले, वहां पे उनको कौन था साथ में, एक अल्लाह की याद और उस प्यार की याद, उस इश्क की याद। मैंने कहा यार ये लिखने वाला कौन है, बशीर दादा ये कहाँ है। उस वक्त मैंने इनको नहीं देखा था,
तो मेरे से वाह निकल गया, और ये तमाम उन तनकीद निगारों के लिए ये है कि देखिए खुदा गवाह चुम जो है वो कैसे इस पर ये ना दिल से वाह निकल जाता है, और वही एक खुदा हो सकता है गवाह इस बात का, इस दूरी का, वही एक खुदा। क्योंकि अगर आपने कैनंत बालन का सफर जो है, वहां पे कोई आपका दोस्त नहीं होगा, कोई रिश्तेदार नहीं होगा, मजनू को भी नहीं था कोई, एक अल्लाह की जात उसे। तो ये बशीर दादा साहब आपको यहाँ मैंने अल्लाह को गवाह रखा है, लेकिन आगे जाके मैंने कहीं कहीं पे अल्लाह को अपना रकीब भी माना है। हाँ। वो कि उन्हें खुदा से मोहब्बत है, उन्हें खुदा से मोहब्बत है और मुझे उनसे, उन्हें खुदा से मोहब्बत है और मुझे उनसे, यही खुदा से मेरे बैर का खुलासा है। वाह वाह वाह। और उन अदारों को मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। जी जी, जो गाना, ये जो कलाम आपने लिखा था, ये कब लिखा था और क्यों लिखा? ये ज़ुर्म दुरर ना, ज़ुर्म दुरर मेरी दूसरी पोइम है, मैं एक्चुअली उर्दू में लिखता था जी। ये आपने अच्छा सवाल किया। ये जुनून था इसको लिखने से पहले? नहीं, जुनून तो हमेशा, जुनून मेरा वाला आदमी लिख सकता है। यस, ये मेरा दूसरा, मतलब मेरी पोइम जो ये है दूसरी, मैंने पहली पोइम मैंने जो कश्मीरी में लिखी वो है चीरित बहाव यज़दिल में गुस्म से यारा सुन, दूसरा था वो ज़ुर्म दुरर, और 40 साल से चल रहा है। तो इसमें कमाल मेरा नहीं है, इसमें शायद आसान अल्फाज हैं और दिलों की तर्जुमानी है लोगों की, बाकी वो कमाल फन नहीं है। अब लोगों ने लाइक किया तो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड पब्लिक व्यू। पब्लिक क्या कह रहे हैं, अगर पब्लिक आपको प्रेजेस करते हैं तो दैट्स द रियल आर्ट। अगर आप कर रहे हैं तो मेरी कामयाबी तभी है जब लोग इसे लाइक करें। तो हम ले देखिए दूसरी पॉइंट। हाँ, अभी हम 10-12 मिनट ऊपर हो रहे हैं, तो 10-12 क्या 15-20 मिनट हम ऊपर हो गए हैं। तो बहुत सारे सवाल आपसे बहुत सारे करने थे और भी वो रह गए, लेकिन अब मैं उनका ये रैप अप करता हूँ इस बात से कि हो सकता है हम आपका हो सकता क्या है कि हम आपका दूसरा सेगमेंट भी, क्योंकि इसका बनता है, आधे से ज़्यादा पोर्शन जो हमारा है वो रह गया है। इस वक्त 1 घंटा और 8 मिनट हम इस वक्त चले गए हैं। ये मेरा सवाल है कि आखिरी सवाल, अवार्ड क्यों नहीं मिला? इतना छोटा अवार्ड था। नहीं वो नहीं, असल में अवार्ड जब नहीं मिलता है कभी, तो मुझे कभी मेरी दिल आज़ारी नहीं होती है। मैं उस वक्त आंखें बंद करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझसे आगे मेरी तो कोई औकात ही नहीं। फिर मैं गिनता हूँ नाम, वो चेहरे सामने लाता हूँ जो बहुत ज्यादा डिजर्व करता है लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला होता है। मैं कह रहा हूँ जब उन्हें नहीं मिला तो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। अवार्ड बेसिकली मेरा ये है कि अभी मेरे दोस्त अभी बात कर रहे थे, हनीफ साहब बीमार भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैं बात करूँ, दिस इज द अवार्ड। ये अवार्ड है, ये अवार्ड। बस आपको उस मोमेंटो की कोई जरूरत नहीं। मैं ये हम कह रहे हैं, इसीलिए मैंने ये रखा था सवाल, क्योंकि एक तो जरूरत नहीं है, दुकानदार ने 500-700 रुपए में बेचा होता है, रात को किसी कारीगर ने लिखा होता है वो ना मोमेंटो पे, और उन्होंने उसकी उजरत ली होती। उनको ये भी नहीं पता है कि इसका क्या करना है, गवर्नमेंट ने या किसी अदारे ने, प्राइवेट अदारे ने। आपको जो लोगों ने अवार्ड दिया है, तिमोथी थॉमस अपने दिलों पे उन्होंने नक्श किया करके वो जो आपको पेश किया है, ये जो अभी बेड पे थे, आप देखिए ना, जिंदगी और मौत के दरमियान, इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है आपको। और सबसे बड़ी बात है गुलाब साहब, सबसे बड़ी बात है कि जो आपको अवार्ड देने वाला है, जो आपको जज करने वाला है, ये डिपेंड करता है, वो कैन ही जज यू। अगर उसमें पोटेंशियल है वो आपको जज करेगा, नहीं करेगा। एक की मुझे जरूरत नहीं है, ऑनेस्टी जरूरत नहीं है। अगर अवार्ड देने वाला समझता है कि दादा अभी डिजर्व नहीं कर रहा, लेकिन मुझे कोई गिला नहीं, मुझे वाकई चाहिए। वी हैव फॉट फॉर विजय कुमार मल्ला, हमने कहा उसको अवार्ड दे दीजिए, कम उसको मरने के बाद तो दे दीजिए। क्योंकि अवार्ड मुझे गुलाब साहब की मोहब्बत है, आप मुझे डॉक्टर शाहिदा मोहब्बत देते हैं, तो यही तो अवार्ड। मगर वाकई मुझे वाकई बिकॉज मुझसे आगे बहुत ज्यादा लोग हैं जो अवार्ड के मुस्तहक हैं।
جب انہیں ملے تب ہو سکتا ہے اگر بچا کوئی ٹرافی وغیرہ بچی تو دیکھے، لیکن اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. نہیں، لیکن میرا کہنا ہے کہ اگر ملا بھی تو آپ لیجئے گا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایوارڈ بہت چھوٹا ہے. آپ کی جو شخصیت ہے، آپ ایوارڈ کے لیے نہیں بنے ہیں. گورنمنٹ ایوارڈ یا کسی سوشل ایوارڈ، یہ جو ملتا ہے نا سوشل تنظیموں سے، جو اس کے لیے نہیں بنے ہیں آپ، لوگوں کے ایوارڈ کے لیے بنے ہیں. ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم اس مٹی سے بلانگ کرتے ہیں جہاں للدت، حبہ خاتون، رسول میر، مہجود، محمود گامی، رحمان ڈار، آزاد، دیناناتھ نادم، موتی لال ساکی، رسا جاویدانی، کامگار کشتواڑی، امین کامل، غنی کشمیری، غلام رسول نازکی، رحمان راہی اور حامدی کشمیری جیسے شخصیات، اور بشیر دادا جیسی شخصیات جہاں پہ جنم لیا ہے جن لوگوں نے، ہمیں اس بات کا مطلب باعث فخر میں محسوس کرتا ہوں. ہم سبھی، ہماری پوری ٹیم کشمیر لٹ کی اور ہمارے ناظرین، باعث سعادت اس خوبصورت محفل میں آپ ہمارے ساتھ رہے. یہ ہمارے لیے مطلب اس سے بڑی خوبصورت اور وہ اللہ کی دین نہیں ہو سکتی، اس پرماتما کی دین نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں. بس اور اگر کچھ کہنا ہوگا آپ کو، کیونکہ ہمارا بہت سارا حصہ رہا، دوسرا سیگمنٹ میں ناظرین سے یہ وعدہ کرتا ہوں ہم جلد بشیر دادا صاحب کا، کیونکہ تنقید کے حوالے سے بات کرنی ہے اور بھی اردو کے حوالے سے بات کرنی ہے، باقی مسائل پہ بھی بات کرنی ہے. دادا صاحب آپ چند اگر آخر میں ایک غزل یا دو غزلیں. میں ایک مختصر سی نظم ہے. میرے سبجیکٹس ہیں، ایک وہ جو میرے بھائی مائیگرنٹ ہو گئے، کشمیری پنڈت، دیٹس مائی سبجیکٹ. اور وہ جو بچے غائب ہو گئے، دیٹس مائی سبجیکٹ. لاپتہ ہوئے، تو ابھی لاپتہ ہوئے لوگوں کا میں آپ کو پہلے ہماری چھت سے ہمارے حصے کی برف لانا، ہمارے کشمیری پنڈتوں کے بارے میں، ہماری چھت سے ہمارے حصے کی برف لانا، دہکتے صحرا کی ریت ہم کو ستا رہی ہے. نئے چمن میں کھلے ہیں دلکش گلاب، لیکن وطن کے کانٹوں کی یاد ہم کو ستا رہی ہے. جلا وطن ہے تمہاری یادیں، جلا وطن ہے کئی رتوں سے ہماری سانسیں، جلا وطن ہے. اور پلٹ پلٹ کے نہ دیکھیے گا چمن کی جانب، ہمیں نہ دے گا کوئی صدائیں، جلا وطن ہے. اور اگر آپ کی اجازت ہو ایک مختصر سی نظم. ارے جناب کیا بات کرتے ہیں. یہ نظم ہے وہ جو میرا دوسرا سبجیکٹ ہے مائیگریشن کے ساتھ میں. خواب و امید کے دروازے مقفل کر دو، خواب و امید کے دروازے مقفل کر دو، کون سنسان گھٹاؤں سے پلٹ آئے گا. آج بھی لوٹ کے آیا نہ کوئی چشم و چراغ، اور یہ سال بھی ایسے ہی گزر جائے گا. اب نہ آئے گا پہاڑوں سے اتر کر کوئی، اپنے بیمار دریچوں سے تلاشا نہ کرو. اب خلاؤں پہ نہ گاڑا کرو نظریں اپنی، چشم پر آب کسی کو بھی دکھایا نہ کرو. کب تلک شام کی چوکھٹ پہ جلاؤ گی چراغ، لوٹ کر صبح کا بھولا نہ کبھی آئے گا. کوئی مدفن نہ جنازہ کوئی آثار نہیں، ایسے انداز سے نابود ہوئے لخت جگر. سال ہا سال اسی کرب و بلا میں گزرے، اور یہ سال بھی ایسے ہی گزر جائے گا. اپنے معصوم کا کس کس سے پتہ پوچھو گی، ماں سے مخاطب ہوں، اپنے معصوم کا کس کس سے پتہ پوچھو گی. قتل گاہوں سے، اذیت کی کمی گاہوں سے، ظلم کی چھاؤں سے، خونخوار دہن غاروں سے، دامن کوہ سے، پربت کے گریبانوں سے، جھیل کی باہ میں بے گور کفن لاشوں سے، کرگ سے وقت کے پنجوں میں جوان چہروں سے، روز کٹتے ہوئے مظلوم جگر پاروں سے، راکھ برباد نشیمن میں دبی سانسوں سے، دشت میں زہر اگلتے ہوئے شہماروں سے، ارض فردوس میں دہشت کے طلبگاروں سے، بھیس انسان کا بدلے ہوئے حیوانوں سے. اپنے معصوم کا کس کس سے پتہ پوچھو گی، رہنماؤں سے. رہنماؤں سے نہ پوچھو، انہیں احساس نہیں درد کیا چیز ہے، زخموں کی خلش کیا شے ہے. خون شہداء سے ان سب کو بھلا کیا مطلب، بیچ کھاتے ہیں جوانوں کے وہ اعضائے بدن. قصہ درد کسی کو بھی سنایا نہ کرو،
لوگ بس لطف اٹھاتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، داغ فرقت کو کسی پر بھی نمایاں نہ کرو، اس طرح گوہر نایاب کو رسوا نہ کرو، آج بھی لوٹ کے آیا نہ کوئی چشم چراغ، اور یہ سال بھی ایسے ہی گزر جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، ہر خوبصورت چہرہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان دادا صاحب جیسا جو درون سے بھی ویسا ہے، برون سے بھی ویسا ہے، انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ دادا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ منظور شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ اس وقت اس خوبصورت سی محفل، اور یہ روح پرور محفل تھی، یہ عام محفل نہیں تھی، تو آپ سبھی جڑے رہے۔ تو بس میں ایک شعر کے ساتھ ودا لیتا ہوں، ہم جلد حاضر ہوں گے دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ، کہ از یُتُے بوزو تو سمکھو بے پگہ، تشنہٕ ہتھِ روزو تو سمکھو بے پگہ، ونکنس ٲسِن اجازت اکھ أکِس وارٕ یوٚد روزو تو سمکھو بے پگہ۔ اوکے دادا صاحب بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، پوری ہماری ٹیم تھینک یو، آپ کا یہ تہ دل سے شکر گزار ہے۔ منظور شاہ صاحب تہند سٹھا سٹھا شکریہ، سٹھا سٹھا شکریہ کہ تُہۍ دِتوٗ پنُن قۭمتی وقت، تو شاید سٲنۍ ناظریٖن کیٛاہ شاید نہٕ سٲنۍ ناظریٖن گٔے محظوٗظ، کیٛازِکہِ اَسہِ چھِ تیٖتۍ آمٕتۍ کمنٹس، أسۍ ہیٚکۍ نہٕ تِم یِم نہٕ سٲری ہیٚکۍ نہٕ تِم اَتھ منٛز اِنکلوٗڈ کٔرِتھ، تہٕ Good night and good morning to people who are in America or South Africa. So good night and good morning also. Thank you. Okay, Shukriya. Thank you very much.